ক্রিকেট উপমহাদেশে কেবল খেলা নয়, এটি আত্মসম্মান, আবেগ, রাজনীতি, ইতিহাস আর আত্মপরিচয়ের মিশেল। ভারত পাকিস্তান ম্যাচ মানেই টেলিভিশনের সামনে কোটি কোটি চোখ, সোশ্যাল মিডিয়ায় যুদ্ধ আর মাঠে 22 গজের তীব্র স্নায়ুযুদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রতিক এক পরাজয়ের পর পাকিস্তানের ক্রিকেট অঙ্গনে যে আত্মসমালোচনার ঝড় উঠেছে তা কেবল স্কোরবোর্ডের কারণে নয়, বরং মানসিকতা, কৌশল এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলেছে। পাকিস্তানি ইউটিউবার আগা মুস্তাফা হাসানের তীব্র সমালোচনা এখন ভাইরাল। তার বক্তব্যে যেমন ক্ষোভ, তেমনই হতাশা। ম্যাচের আগে এত বড় বড় কথা বললেন, তার চেয়ে বয়কট করতেন, অন্তত সম্মানটা থাকতো। এই আবেগী মন্তব্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে পাকিস্তান ক্রিকেটের কাঠামোগত সংকটের গল্প। ইউটিউবারের ভাষায়, ভ্রম আপনার সালমান খানের মতো, পারফরমেন্স রাখি সাওয়ান্তের মতো। তুলনাটি কটাক্ষে ভরা, কিন্তু ইঙ্গিত স্পষ্ট। পাকিস্তান দল নিজেদের ব্র্যান্ডিং, আত্মপ্রচারে যতটা ব্যস্ত, মাঠে ততটা ধারালো নয়। আজকের ক্রিকেটের সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি, ব্র্যান্ডিং, বিজ্ঞাপন সবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখন ইনস্টাগ্রাম স্টোরির চেয়ে ইনিংসের ধার কমে যায়, তখন প্রশ্নটা ওঠে বয় কি। তাহলে আপনাদের ফোকাসটা কোথায়? ক্রিকেটে আবেগের চেয়ে সংখ্যাই শেষ কথা বলে, বা পরিসংখ্যান শেষ কথা বলে। ভারতের নেট রান রেট আর পাকিস্তানের নেট রান রেটের ফারাকই যেন ম্যাচের সারাংশ। ভারতীয় দল চাপের মুহূর্তে রান তোলার গতি বাড়িয়েছে, উইকেট নিয়েছে পরিকল্পনা মাফিক। পাকিস্তান সেখানে কখনো রক্ষণাত্মক, কখনো অস্থির। বিশেষজ্ঞদের মতে আধুনিক সাদা বলের ক্রিকেটে নেট রান রেট শুধু পরিসংখ্যান নয়, এটি মানসিকতার প্রতিফলন। আপনি কি ম্যাচ জিততে চান, নাকি শুধু টিকে থাকতে চান? সমালোচনার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে টসের সিদ্ধান্ত। দুবাইয়ের মতো উইকেটে যেখানে চেস করা সুবিধাজনক, সেখানে টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া, আর কলম্বোতে ঠিক উল্টো সিদ্ধান্ত। ঘরে বসে দর্শক বুঝতে পারছেন, অথচ মাঠে নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তি বুঝলেন না। এই অভিযোগই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। কৌশলগত ভুল নতুন কিছু নয়, কিন্তু বারবার একই ধরনের ভুল হলে সেটি পরিকল্পনার ঘাটতি বলেই ধরা হয়। সমালোচকরা আগেই বলেছিলেন, নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিপক্ষে যদি এমন ব্যাটিং হয়, তবে ভারতীয় স্পিন আক্রমণের সামনে কি হবে? ভারতীয় স্পিনাররা কেবল বল ঘোরাননি, ম্যাচের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। পাকিস্তানি ব্যাটাররা হয় অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক, নয়তো অযথা আক্রমণাত্মক। মাঝের ভারসাম্য অনুপস্থিত। কি বলছেন পাক ইউটিউবার, শুনে নিন। एक रियलिटी चेक सुन लो। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहां हम यहाँ पे उस्मान तारिक करी जा रहे थे, वहां पे इंडियन क्रिकेट टीम चुपचाप ये मैच 61 रन से जीत कर चली गई है। इंडियन क्रिकेट टीम का नेट रन रेट जाके उठा के देखो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात देखो। हमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं भाई साहब, और जब इन पे कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो इनकी ईगो ऐसे फड़फड़ाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हमने। मुझे दूसरा समझ नहीं आता कि ये सलमान अली आगा की सबसे अलग दिखने की क्या ऑब्सेशन है। टॉस जीत लिया था तो भाई पहले बैटिंग करते हैं ना। दुबई जैसे ग्राउंड में जहाँ पे कंडीशंस आपको चेस करने के लिए ज्यादा प्रेफर करती हैं, वहां पे ये भाई साहब टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, और इन कंडीशंस में जहाँ पे आपको चेस नहीं करना चाहिए, वहां पे ये टॉस जीत के चेस की तरफ जाते हैं। मतलब इतनी अकल तो हमें भी थी भाई घर बैठ के कि भाई जो ये ग्राउंड है यहाँ पे चेस नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह की ये पिचेस थी यहाँ पे मजीद कंडीशंस न्यूट्रलाइज हो रही थी स्लोनेस की तरफ। भाई मुझे तो ये बात शुरू से पता थी कि वो टीम जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट टारगेट चेज नहीं कर पाई, वो इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट टारगेट चेज करेगी। लेकिन इस टीम की खुशफहमी की जो इंतहा है ना, उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये लोग इतने ढिलुलू वर्ल्ड में रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल कह के इस टीम की साइड लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इसको अनप्रिडिक्टेबल नहीं कहते, इसको शेमलेसनेस कहते हैं, पीक शेमलेसनेस। एक टीम, हमारी टीम मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 माह से श्रीलंका में पता नहीं कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलती आ रही है, ठीक है, कभी सीरीज, कभी ये, कभी वो। और वहां पे इंडिया अपने एक होम टूर्नामेंट से यहाँ पे ऑल द वे ट्रेवल करके आती है श्रीलंका, और हमें इतने बेशर्मों की तरह हरा देती है। शाहीन, शादाब और अबरार, इन तीनों ने मिलाकर 6 ओवर्स में, सिर्फ 6 ओवर्स में 85 रन लीक कर दिए, और वहां पे बाकी सब ने 13 ओवर्स में 90 रन लीक किए। ये आपके बॉलिंग कंपैरिजंस हैं, ठीक है। शाहीन, शादाब, ये दोनों आपकी टीम के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इवन बाबर आजम, बट बाबर आजम से तो ना पावर हिटिंग होती है व्हेनेवर द टीम नीड्स हिम, और ना ही उन भाई साहब से एंकरिंग होती है जब टीम को असल में उनकी एंकरिंग की जरूरत होती है। शादाब खान, छोटी टीम्स के अगेंस्ट तो इनसे बेहतरीन ऑलराउंडर कोई है ही नहीं, लेकिन जब बात आती है बड़ी टीम्स की, तो इन भाई साहब के हाथ पैर फूल जाते हैं। পাকিস্তান দলের পোস্টার বয় বাবর আজম, কিন্তু সমালোচনা এখানেও তীব্র।
আগা মুস্তাফা হাসানের মতে বাবরের দ্বারা পাওয়ার হিটিং হয় না, আবার অ্যাঙ্কারিংও ঠিকমতো হয় না। আধুনিক টি-20 বা ওডিআই ক্রিকেটে একজন ব্যাটারের ভূমিকা স্পষ্ট হতে হয়। তিনি কি ইনিংস গড়বেন নাকি গতি বাড়াবেন? মাঝামাঝি অবস্থান প্রায়শই দলের ক্ষতি করে। ইউটিউবারের আরেকটি অভিযোগ, সমালোচনা হলেই খেলোয়াড়দের ইগো ফরফর করে ওঠে। ক্রীড়াবিদদের আত্মসম্মান থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আত্মসমালোচনার ক্ষমতা না থাকলে উন্নতি থেমে যায়। ভারতীয় দলে গত এক দশকে পারফরমেন্স ভিত্তিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, নাম নয় ফর্মই শেষ কথা। পাকিস্তানে কি সেই সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে? তিনি বলেছেন, আমাদের দল ইনস্টাগ্রামে স্টোরি দিতে পারে, বড় বড় সাংবাদিক বৈঠক করতে পারে। এই মন্তব্য কেবল কটাক্ষ নয়, এক বাস্তবতার ইঙ্গিত। ক্রিকেটাররা এখন সেলিব্রিটি, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি কখনোই ফিটনেস, ফোকাস, টেকনিকের বিকল্প হতে পারে না। ভারত পাকিস্তান ম্যাচ মানেই তুলনা। ভারতের গভীর বেঞ্চ স্ট্রেংথ বা রিজার্ভ বেঞ্চ, ডোমেস্টিক লিগের কাঠামো, বিশ্লেষণ ভিত্তিক পরিকল্পনা, এসবের সামনে পাকিস্তানের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভারত দীর্ঘ বিরতির পর বিদেশের মাটিতে এসে জিতে গেল। পাকিস্তান কয়েক মাস ধরে একই কন্ডিশনে খেলেও ছন্দ খুঁজে পেল না। অনেকে বলেন ক্রিকেট অনিশ্চিত, কিন্তু ধারাবাহিক ব্যর্থতা কি অনিশ্চয়তা নাকি কাঠামোগত সমস্যা? একটি দল যদি বারবার বড় ম্যাচে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, সেটি আর কাকতালীয় থাকে না। ভারতীয় খেলোয়াড়রা আইপিএল সহ নানা বড় মঞ্চে অভ্যস্ত। পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক এক্সপোজার তুলনামূলক কম। চাপের ম্যাচে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, শরীরী ভাষা, আত্মবিশ্বাস, এসবের ফারাক চোখে পড়ছে। সমাধান কোথায়? স্পষ্ট ভূমিকা নির্ধারণ, প্রতিটি ব্যাটার ও বোলারের নির্দিষ্ট কাজ, ডেটা ভিত্তিক কৌশল, প্রতিপক্ষের শক্তি দুর্বলতা ও বিশ্লেষণ, ফিটনেস ও ফিল্ডিং উন্নতি। আধুনিক ক্রিকেট অপরিহার্য এই কয়েকটা জিনিসে। তো এ বিষয়ে পাকিস্তানি ওই ইউটিউবার কিভাবে সমালোচনা করছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের, শোনাবো আরেকবার। एक रियलिटी चेक सुन लो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली, जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर है। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहां हम यहाँ पे उस्मान तारिक कर ही जा रहे थे, वहां पे इंडियन क्रिकेट टीम चुपचाप ये मैच 61 रन से जीत कर चली गई है। इंडियन क्रिकेट टीम का नेट रन रेट जाके उठा के देखो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात देखो। हमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं भाई साहब, और जब इन पे कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो इनकी ईगो ऐसे फड़फड़ाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हमने। मुझे दूसरा समझ नहीं आता कि ये सलमान अली आगा की सबसे अलग दिखने की क्या ऑब्सेशन है। टॉस जीत लिया था तो भाई पहले बैटिंग करते हैं ना। दुबई जैसे ग्राउंड में जहाँ पे कंडीशंस आपको चेस करने के लिए ज्यादा प्रेफर करती हैं, वहां पे ये भाई साहब टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, और इन कंडीशंस में जहाँ पे आपको चेस नहीं करना चाहिए, वहां पे ये टॉस जीत के चेस की तरफ जाते हैं। मतलब इतनी अकल तो हमें भी थी भाई घर बैठ के कि भाई जो ये ग्राउंड है यहाँ पे चेस नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह की ये पिचेस थी यहाँ पे मजीद कंडीशंस न्यूट्रलाइज हो रही थी स्लोनेस की तरफ। भाई मुझे तो ये बात शुरू से पता थी कि वो टीम जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट टारगेट चेज नहीं कर पाई, वो इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट टारगेट चेज करेगी। लेकिन इस टीम की खुशफहमी की जो इंतहा है ना, उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये लोग इतने ढिलुलू वर्ल्ड में रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल कह के इस टीम की साइड लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इसको अनप्रिडिक्टेबल नहीं कहते, इसको शेमलेसनेस कहते हैं, पीक शेमलेसनेस। एक टीम, हमारी टीम 6 और मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 माह से श्रीलंका में पता नहीं कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलती आ रही है, ठीक है, कभी सीरीज कभी ये कभी वो, और वहां पे इंडिया अपने एक होम टूर्नामेंट से यहाँ पे ऑल द वे ट्रेवल करके आती है श्रीलंका, और हमें इतने बेशर्मों की तरह हरा देती है। शाहीन, शादाब और अबरार, इन तीनों ने मिलाकर 6 ओवर्स में, सिर्फ 6 ओवर्स में 85 रन लीक कर दिए, और वहां पे बाकी सब ने 13 ओवर्स में 90 रन लीक किए। ये आपके बॉलिंग कंपैरिजंस हैं, ठीक है। शाहीन, शादाब, ये दोनों आपकी टीम के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इवन बाबर आजम। बट बाबर आजम से तो ना पावर हिटिंग होती है व्हेनेवर द टीम नीड्स हिम, और ना ही उन भाई साहब से एंकरिंग होती है जब टीम को असल में उनकी एंकरिंग की जरूरत होती है। शादाब खान छोटी टीम्स के अगेंस्ट तो इनसे बेहतरीन ऑलराउंडर कोई है ही नहीं, लेकिन जब बात आती है बड़ी टीम्स की तो इन भाई साहब के हाथ पैर फूल जाते हैं। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।